Hi guys, my name is Vaibhav and today I'm back with another recommendation. मैंने Hotstar पे अभी recently एक show देखा which I want to recommend. The name of the show is Billions. Billions is a show about this billionaire whose name is Bobby Axelrod, जो एक hedge fund manager होते हैं. So show में Bobby is at one side of the arc और दूसरी side होते हैं Chuck Rhodes, who is a district attorney who is trying to take down Bobby Axelrod because वो Bobby कुछ चीज़ें unethically करते हैं legally जिनमें issues होते हैं and Chuck doesn't like Bobby at all. There is a reason for that also because Chuck की जो wife होती है Wendy works at Axe Capital. So Wendy is a performance coach जो अलग अलग जो भी traders होते हैं उनके साथ sessions करती हैं. She asks them are you doing okay और कुछ भी दिक्कत होती है तो basically जो proper आपके therapy sessions होते हैं वैसे होते हैं. But these are the therapy sessions so that the company can earn more money. They want to make sure कि आप ढंग से आपका mind sorted हो, कोई चीज़ आपको bother नहीं कर रहे हो, जिससे आपकी performance improve हो, जिससे कि आप और करोड़ों रुपए कमाओ. थोड़ा सा मैं आपको इन characters के नाम बताना चाहता हूँ because these are the three main characters in the show, Bobby, Chuck and Wendy. Dynamics बहुत अलग है. आप शो का पहला सीन ही देखोगे. Interesting way to start a show. उसमें basically Chuck is on the floor. I wouldn't call it a spoiler because this is the first scene of the show. So Chuck is lying on the floor. He's tied with all ropes and everything, and there is a woman who is wearing high heels. And वो woman अपना like she keeps her heel on his chest or he is lying naked and then she pees on him. So एक पूरा एक बहुत गंदा सा वो BDSM का सीन दिखाया है उसमें. And this is how the show starts. Then धीरे धीरे आपको इनकी डायनामिक समझ आता है कौन कैसा है. Like Bobby Axelrod is a complete alpha male. Like he's super intelligent. He knows how to do things. उसको पता होता है वो like बहुत सारे उसमें मतलब शर्लॉक होम्स वाले ट्रेड्स हैं कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, कि ये कौन सी कंपनी को कब शॉर्ट करना है और कैसे पैसे कमाने हैं. ही इज़ लाइक सुपर इंटेलिजेंट. मीनवाइल चक को एक बहुत ही ऐसे ग्राउंडेड पर्सन दिखाया है. ग्राउंडेड इन द सेंस इफ कंपेयर टू बॉबी एक्सेलरोड जो मेहनत करके लाइक cases जीतता है. But he is very submissive when it comes to his like sex life and he is totally into that BDSM thing. But does it affect his lifestyle? Maybe not. It's just a thing that the writers want you to know. धीरे धीरे आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा उसके कोई repercussion है या नहीं है. But ये first episode में pilot में establish हो जाता है. Wendy is also a very interesting character in the show because Wendy is trying to balance these two guys. देखो the thing is कि both Chuck and Bobby hold Wendy in high regards. मतलब Bobby is like this alpha male जो किसी की नहीं सुनता, but when Wendy says something to him he's like कि हाँ मैं सुन लेता हूँ. Similarly Chuck listens to Wendy क्योंकि वो उसकी wife है और उनका जैसी भी dynamics है जो आप show देखोगे तो समझ आएगा. He always listens to Wendy. एंड वेंडी इज़ वेरी क्लेवर दैट वेज. तो इनका ये डायनामिक्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है. अब ये शो आप इनिशियल सीजन्स में इट्स लाइक अ कैट एंड माउस फाइट की चक इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन एक्स एंड एक्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन चक. बट बोथ द साइड्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल. चक का रोल प्ले किया है पॉल जियामार्टी ने, एक्स का रोल प्ले किया है डैमियन लुइस ने. Extremely good actors. One of the biggest reasons why you should watch this show is because of the acting of these two guys. मतलब every scene in which these two people are together मतलब आप मतलब इतने एज पे हो गए एंड यूल बी लाइक कि यू नेल बाइटिंग सीन्स होते हैं वो प्रॉपर की होली शिट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. और वो राइटर्स बहुत मतलब समझदारी से लाते हैं सीन्स व्हेन इन दोनों का फेस ऑफ होता है. एंड वेरी हाई एनर्जी सीन्स. सिंस इट्स अ शो अबाउट ट्रेडिंग सो इट विल हेल्प इफ़ यू लाइक कीप योर रिसर्च ऑन कि आप थोड़ा देखते रहो कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है. देयर इज़ एन एपिसोड जो शायद सीजन 1 का एपिसोड 4 है विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट स्क्वीज. मैंने उसमें बहुत सारे नोट्स बनाए थे बिकॉज इट वॉज अ वेरी टेक्निकल एपिसोड. ये चीज़ है कि अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप देख ही रहे हो कोई ट्रेडिंग रिलेटेड शो तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी बहुत रिसर्च साथ में करते रहो. आई टेल यू व्हाट माई रिचुअल इज. एवरी टाइम आई वॉच एन एपिसोड और अ मूवी दैट आई लाइक, especially for TV shows I do that. I open Reddit and I see the discussions of that show and I read each and every comment. And since उसको पूरा उन्होंने moderate ऐसे किया होता है कि जितने भी top comments है वो ऊपर आते हैं तो it's very easy. तो Reddit also helps a lot. तो Billions के short squeeze में मेरे को जितनी भी सारी चीज़ें थी आधी तो मेरे को Reddit पे पढ़ के समझ आई थी. ओ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है.
एंड अनदर थिंग दैट आई लाइक अ लॉट अबाउट बिलियंस इज इसमें कैमियोज इतने कैजुअली आते हैं बट दे ऑलवेज मेक सो मच सेंस बिकॉज बॉबी एक्सेलरॉड इज अ बिलियनर और इसमें एक बिलियनर की अगर आप लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो अगेन लाइक वो लाइक इट शुड एड ऑन टू द कैरेक्टर राइट. इन वन ऑफ द सीन्स इन लाइक द लेटर सीजन वो सुबह सुबह कहीं टेनिस खेल रहा है, वार्म अप कर रहा है एंड ही इज प्लेइंग दिस विद अ वुमन और मैं देख रहा हूँ ये वुमन कहीं देखी हुई है, पहले ढंग से उस पर शॉट आया या नहीं है और फिर जब क्लोज आता है मैंने कहा ओ शिट शी इज़ मारिया शारापोवा और मैं देखता हूँ कि मारिया शारापोवा को ले आए. और ऐसे इतने सारे इसमें है कि एक एपिसोड है जिसमें इसका मन करता है कि यार मेटालिका परफॉर्म कर रहा है, बहुत साल हो गए मेटालिका का इसने कोई शो नहीं देखा, तो ये मेटालिका का शो देखने जाता है, अपने स्कूल फ्रेंड्स को लेके जाता है प्राइवेट जेट में. दे गो देयर, दे रीच लाइक अ फ्यू आवर्स अर्ली जिसके साथ मेटालिका के साथ अलग से रूम में टाइम स्पेंड कर सकें. बहुत ऑथेंटिक लगते हैं कैमियोज बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ हम बिलियनर है तो वैसे दिखाते हैं आयाशी वाली लाइफ दिखाते हैं. दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कैरेक्टर्स जो थोड़े साइड कैरेक्टर्स भी हैं जो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं. वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन द शो इज वैग्स हु इज द COO ऑफ एक्स कैपिटल. वो बंदा इतना चिल है, मतलब एवरी सीन इन विच वैग्स इज देयर मतलब मैं तो स्माइली कर रहा होता था बिकॉज ही हैज सच अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. उसका चलने का तरीका जो है एंड लाइक वो एक बहुत कूलनेस लाता है वो स्क्रीन पे. वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन द शो इज चक रोड्स सीनियर जो चक के डैड होते हैं. ही वॉज अ पॉलिटिशियन इन हिज टाइम्स एंड चक रोड्स सीनियर और चक रोड्स जूनियर के जितने भी सीन है दे आर टू डाई फॉर बिकॉज चक सीनियर इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स इन द शो. उसने इतनी पॉलिटिक्स देखी है तो जूनियर को बताता रहता है बॉस इसको तू ऐसे कर, ये चीज़ ऐसे होगी, तो वो प्रॉपर इन्वॉल्व भी होता है. और जो हमारे जो चक रोड्स हैं वो बोलते हैं डैड मेरे को पता है कैसे करना, बोलता है नहीं नहीं तेरे को नहीं पता है मेरी बात सुन. एंड ही इज़ नॉट लाइक दैट जस्ट अनदर डैड, लाइक व्हेन ही सेज समथिंग ही मेक्स सो मच सेंस. ही इज़ देयर. एक कैरेक्टर है ईरा जो चक के लॉयर होते हैं. ही इज़ सो गुड. वन ऑफ माई फेवरेट सीन इन द शो इज़ कि ईरा बैठे होते हैं सीजन 1 में चक के साथ एंड ईरा इज दिस थिंग ऑफ डेटिंग वेरी यंग गर्ल्स. ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर एंड चक इज़ लाइक यार मैं वेंडी के साथ हूँ बट वेंडी एक्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करती है मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ. उसमें ईरा उसको समझाता है कि यार ये जो लाइफ स्टाइल है ना वेयर यू आर लाइक डेटिंग न्यू गर्ल एवरी अदर डे एंड ऑल दीज women whom you find on Tinder and etc. And he's very old, like he's like in his late 40s and he dates like 20-year-olds, 21-year-olds. So वो बताता है इसकी डाउनसाइड क्या है when you like get accustomed to this lifestyle. इसका एक मोनोलॉग है एंड आई वाज लाइक होली शिट. मतलब जब आप ओल्ड हो जाते हो तो अब आप इन चीज़ों को आप कर भी रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आता. एंड ईरा देन बताता है जो मेरी एक वाइफ थी लाइक आई ब्लू इट विद हर एंड वो मतलब अपना गिल्ट दिखाता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा और पेशेंट होता तो शायद लाइक थिंग्स वुड हैव बीन बेटर. तो नई एक लड़की आ रही है उसके पास और वो बैठे हैं चिल कर रहे हैं एंड ही स्टिल ट्राइंग टू लाइक थिंक ऑफ दोज डेज व्हेन थिंग्स वर सिंपलर. एंड आई टेल यू वन मोर रीज़न व्हाई आई लव द शो. ये एक मैंने ट्रेंड देखा है कि जो मैंने पहले भी बोला था गेम ऑफ थ्रोन्स में एक ट्रेंड सेट हो गया था कि in every season episode 9 has to be the like episode जहाँ पे the shit is going down which has to be the most important episode of the show. इससे पहले episode 10 होता था. What I also noticed in this show और जो मैंने Better Call Saul के लिए भी कहा था ना, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं hard reset. तो मतलब राइटर्स को क्या होता है कि जब एक शो चल रहा होता है जिसमें आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर्स है और आपने दिखा दिया सीजन 1 में कैट एंड माउस फाइट है, कोई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो आपने एक बार दिखा दिया, आपने 2 बार दिखा दिया, तो आप कितनी बार दिखाओगे वो. तो लेज़ी राइटिंग से बचने के लिए क्या करते हैं लाइक मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि व्हेन कैन यू टेल दैट द राइटर्स हैव गॉन लेज़ी. तो किसी ने उस पर आंसर किया था कि यू कैन टेल द शो की राइटिंग हैज़ गॉन लेज़ी व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग एवरी कैरेक्टर स्लीप विद एवरी कैरेक्टर. ये शायद फ्रेंड्स में एक टाइम पे हुआ था. आप देख रहे थे आप मतलब वो करा रहे हो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हो कि हाँ इन दोनों को साथ में इनका कुछ सीन दिखा दो कुछ करा दो. आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते ना तो आप उसी मतलब इन्वायरमेंट में कर देते हो हाँ इनका कुछ सीन दिखा दो इनका कुछ करा दो. इससे बचने के लिए व्हाट अ लॉट ऑफ शोज डू इज दे हार्ड रीसेट एवरीथिंग. वो हार्ड रीसेट में जाते हैं, शो को पिवट कर देते हैं और वो नए टैंजेंट्स पे चले जाते हैं. ये जैसे मैंने उसके लिए कहा था बेटर कॉल सॉल के लिए, वो मतलब 2.5 सीज़न के बाद आपको मतलब क्लोजर मिल रहा है इन द मिडल ऑफ द सीज़न. ये बिलियंस में भी होता है. आफ्टर 2 सीजन्स जो सीज़न 3 और 4 है
वहाँ पे ये चीज़ 2 बार होती है जहाँ पे शो को हार्ड रीसेट कर देते हैं. सो एंड ना इन्होंने मतलब वाटर्स टेस्ट करके किया था. वो सीज़न 2 ऑनवर्ड्स ना बहुत सारे नए कैरेक्टर्स ले आते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन्स देते हैं और जो उनके लिए वर्क करते हैं उनको ज़्यादा रोल दे देते हैं. बाय दी सीज़न 3 एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे शो ख़त्म हो सकता था कि यार सब हो गया, अब तो चलो घर चलो, ओवर है. बट नहीं, इट हैपन्स इन द मिडल ऑफ द सीजन एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज वेन यू डू इट ना, मतलब आप खुद को चैलेंज कर रहे हो कि यार ये तो हम कर ही सकते थे, इसके अलावा क्या है. एंड जो मैं बेटर कॉल सॉल के बारे में बहुत बोलता हूँ, तो बिलियंस ने भी ये करने की कोशिश की, एक हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए थे. एंड दैट इज़ वन थिंग विच कीप्स द शो एंगेजिंग. इसके मेरे को शो के जो यूनिवर्स की जो राइटिंग है और जो लाइफस्टाइल है, इसके डायलॉग्स है, उसकी भी बात करनी है. लेट्स टॉक अबाउट डायलॉग्स फर्स्ट. इसके डायलॉग्स अनलाइक सक्सेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इनमें वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं पूरे टाइम ना, स्मार्ट बातें करते रहते हैं. जैसे याद हो अगर मैंने सक्सेशंस का एक एपिसोड किया था, सक्सेशन में आधे टाइम ये लोग कुछ बोलते ही नहीं थे. दोज वर ऑल्सो सुपर रिच पीपल. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट बिलियंस वर्सेस सक्सेशन इन अ वाइल. बट सक्सेशन में कोई वैसे कुछ बात बोलता था दे वाले हाँ, पर इसमें बहुत टाइम दे जस्ट कीप सेइंग स्मार्ट थिंग्स विच ऑल्सो वर्क्स इन द शो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कम सीरियस स्पेस में है शो. मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एक नॉच ऊपर करके शो में ड्रामा है विच वर्क्स फॉर दिस शो ऑल्सो. तो इसमें कुछ जो डायलॉग्स है वो इतने ज़्यादा मेरे को फनी लगे थे. लाइक देयर इज़ दिस डायलॉग कि एक पोकर का मैच होता है ऑफ द मोस्ट लाइक द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ वॉल स्ट्रीट. तो ऐसे ना, मतलब ऐसे 10 लोग ऐसे टेबल पे बैठे होते हैं और पीछे से कोई कमेंट्री कर रहा होता है कि वी हैव 2 ऑल-इन्स इन फ्रंट ऑफ अस, वन ऑफ दीज पीपल विल गो होम रिच and one of these people will go home rich but pissed. In one of the scenes where Chuck and Axe are together, वो उनका एक ऐसे ना डायलॉग हो रहा होता है, तो Axe उसको बता रहा होता है कि मेरी गलती क्या है, मैं पैसा ही तो कमाता हूँ एंड लाइक मैं ट्रेडिंग में अच्छा हूँ, इसमें तुम मेरे को क्यों करते हो, गवर्नमेंट इतने टैक्स रेगुलेशंस लाती है, बट व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, आई जस्ट अर्न मनी, इज दैट अ क्राइम. एंड Chuck उसको बोलता है सेव द सिविक्स लेसन एंड द आयन रैंड बुलशिट फॉर अनदर टाइम. आप अगर देखो ना तो पूरे आयन रैंड वाले स्ट्रक्चर पे वर्क करता है एक्स की, जो पूरा इंडिविजुअलिज्म पे जो भी आयन रैंड का होता है. तो वो उसको कॉल आउट कर देता है, डोंट गिव मी दिस आयन रैंड बुलशिट राइट नाउ. बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. मतलब एवरीथिंग इज़ गुड बट सम आर वेरी गुड. जैसे सीजन 2 में एक एपिसोड आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन विच इज़ एक्सट्रीमली फकिंग गुड. मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, बट द प्लॉट ट्विस्ट इज़ सो गुड. मतलब जैसे ही शो ख़त्म हुआ था वो सीन मैंने 1-2 बार जाके रिविजिट किया था. व्हेन यू विल वॉच इट यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दे ऑल्सो कीप गिविंग लाइक होमाज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव लाइक टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम. गॉडफादर को बहुत ज़्यादा रेफरेंसेज आएंगी शो में. चाइना टाउन को लेके बहुत सारी रेफरेंसेज है. चाइना टाउन को लेके तो एक पूरा एपिसोड है जिसका नाम है चिकन टाउन. इट्स अ वेरी फनी एपिसोड. तो उन्होंने लाइक दे हैव गिवन होमाज टू चाइना टाउन. एंड there is this episode which is called The Conversation, which is the last episode of season 1, one of the best episodes of the show. It's like totally like giving like an ode to The Conversation, the movie, which is a movie that came out in 1974, which was directed by Francis Ford Coppola. कि कोई इंसान को जब लग रहा होता है कि कोई उसकी बात सुन रहा है एंड लाइक कि कहीं ना कहीं कोई वायर लगी है, लाइक विच इज़ लाइक आपके फ़ोन टैप हो रहे हैं वगैरह, देन हाउ डू यू ऑपरेट. That is like one of the greatest episodes of the show. And show का music दिया एस्कमो ने. I'm not sure if I'm pronouncing his name right, but he's damn good. Like जो particularly जो music है इसका जिसमें इनके face offs होते हैं, वो तो मतलब मैं सुनता रहता हूँ. उस पर कॉमेंट भी है यूट्यूब पे कि like this soundtrack is enough for you to watch the show because it's damn good. Now let's talk about सक्सेशन वर्सेस बिलियंस. अभी तक जितना है, सक्सेशन के 2 सीज़न आए हैं और बिलियंस के 4 सीज़न आए हैं. बिलियंस का 5वां सीज़न अभी आ रहा है, May 3 को रिलीज़ हो रहा है. एंड सक्सेशन का जो सीज़न 3 है उसका प्रोडक्शन रुक गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो सक्सेशन इज़ अ बेटर शो बिकॉज इट इज़ बेटर रिटन, क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा मतलब सटल है. बिलियंस की राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा लाउड है बट इंटेंशनली सो. बट देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सक्सेशन इज़ अबाउट बिलियनियर्स जो एक फैमिली में एंड डमी बिलियनियर्स जो होते हैं ना, कि जो जिनके पास पैसा आ गया है और उनको पता नहीं है कि मतलब क्या करें उसका. बट बिलियंस इज अ शो अबाउट अ बिलियनियर हु नोज हिज शिट. बॉबी एक्सेलरॉड
उसको हर चीज़ पता होती है कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा, क्या करना है. अ वेरी फकिंग गुड एंटरप्रेन्योर. दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस. तो जो डार्क ह्यूमर जो सक्सेशन में है ना, वो ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि उसकी एक तो राइटिंग वैसी है, एंड दीज पीपल डोंट नो, लाइक दे उनका पूरा लाइफस्टाइल वैसा है, उनको पता है कौन सी चीज़ कैसे पहननी है, कौन से कपड़े क्या पहनने हैं, but they are just enjoying the money that they have. They don't necessarily are good at what they do. Meanwhile, in Succession, the people are good at what they do. Particularly the one guy whom the show is about. Succession is a better show, and if you get a chance, I would still suggest दोनों Hotstar पे पढ़ें. आप पहले Succession देखना, फिर Billions देखना. So this was my recommendation for the week. I hope you guys are staying home, trying to make the best use of the time. By the way, if you like our work, you can support us on YouTube community and Patreon. हम दोनों जगह available हैं. एंड मैंने अभी अपना फर्स्ट लाइव स्ट्रीम किया था चलचित्र के पेज पे लाइक 2 or 3 days बैक. सो डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ इट. मैं और भी करूँगा. दे वोंट जस्ट बी अबाउट मूवीज़ के सीन दैट आई लाइक, but they will also be about like films and like the shows and the inspirations that I have in general. जैसे I think next episode में मैं मार्क डुप्लेस के बारे में बात करूँगा, and particularly हम उनकी एक speech साथ में देखेंगे which has influenced me a lot. So live streams, like I'll try to do 1 or 2 live streams every week now, and this recommendation series will though go on for as long as it can. So yes, this was my recommendation for the week. Tune in next week for more recommendations. Thank you.